Hello everyone. Hello. Today I'll be discussing about issue of debentures. Okay, issue of debentures और कल या परसों हम लोग देखेंगे redemption of debentures. Okay, redemption of debenture entries. Right. So yeah, I'll get straight to the point. Okay. So without wasting any time. Okay. Now I'll switch my screen to OneNote. Right. Okay. Yes, so as you're saying my OneNote, these are my class notes. Okay, these are my class notes. I'm taking online classes for students. Okay, so yeah, so as we have seen that what is share capital and their issue of shares and forfeiture of shares and cancellation of shares and reissue of shares, we have seen the journal entries, right? So we'll be discussing about the debentures. So भैया ये debentures मतलब क्या है? ठीक है, debentures मतलब क्या है? The main and the core difference between issue of shares and issue of debentures is the ownership. Okay, the ownership. Okay, भैया मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। इश्यू ऑफ शेयर्स में जब भी पब्लिक कंपनी को पैसे देता है तभी क्या होगा, कंपनी अपना ओनरशिप पब्लिक को देगा। ठीक है, कंपनी अपना ओनरशिप पब्लिक को देगा, राइट। अभी डिबेंचर्स में क्या हो रहा है भैया, डिबेंचर्स में क्या होगा, ठीक है, डिबेंचर्स में क्या होगा कि पब्लिक कंपनी को पैसे इसीलिए दे रहे हैं इन द व्यू ऑफ माइंड दैट ये जो कंपनी है मुझे ये अच्छा सा रिटर्न करके देगा, वापस देगा। ठीक है, पैसे वापस देगा एंड द कंपनी टेक्स दैट मनी एज अ लोन। ओके, एंड द कंपनी टेक्स दैट मनी एज अ लोन। भैया कब कब जब कंपनी सॉरी जब पब्लिक डिबेंचर्स दे रहा हो। ठीक है, ओके। सो द कोर डिफरेंस इज शेयर्स में कंपनी का ओनरशिप चला जाता है और डिबेंचर्स में कंपनी का ओनरशिप चला नहीं जाता। ठीक है, ओके भाई, ठीक है। सो as I'll be discussing the brief introduction, okay, and we'll be seeing the issue of debentures, right? So yeah, भैया आज हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। सी, 12th के लिए, ओके, सेकेंड पीयूसी कॉमर्स के लिए सिर्फ ये है। ठीक है, ये है, ये वाला पॉइंट, और ये है, और ये है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, राइट। ओके भैया, ये भैया और ये पांचों कब कहाँ पे है, ये पांचों जो है ना ये सीए फाउंडेशन के लिए है। ठीक है, सीए फाउंडेशन के लिए है, राइट भैया, ओके। सो या फर्स्ट वन, एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश मतलब क्या है, कैश, पब्लिक कैश कंपनी को देगा, ओके, कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करेगा, दैट्स इट, in via cash, okay, right, okay। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये तो नहीं है। ठीक है, डिबेंचर्स इश्यूड इन काइंड, डिबेंचर्स इश्यूड इन काइंड भैया इसका मतलब क्या है, लुक हियर, पब्लिक कंपनी को कैश देगा इन द फर्स्ट केस। नाउ दिस इज द थर्ड केस, डिबेंचर्स इश्यूड इन काइंड। यहाँ पे क्या होगा, कंपनी पब्लिक से पैसे नहीं लेगा, company does not take any money from the public. Okay, what it does, rather than uh, taking any penny, any cash from the public, what it does is it takes a fixed asset. Okay, it takes of any fixed asset from the public, okay, and issue the worth of that fixed asset debentures. Okay, then issues debentures which is worth of that fixed asset, right? Okay bhai, डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये तो नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट, यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट, द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू द redeemable period, okay, the redeemable period, right? I'll be discussing later in later videos, okay। So firstly we'll discuss about first two things, entry of issue of debentures for cash, next, and debenture issued in kind, right?
ओके भैया, हमको समझ में आ गया, ठीक है भैया। क्या इतना ही इंट्रोडक्शन? इतना तो नहीं है, ठीक है। आई हैव ओनली डिस्कस्ड in a brief way, okay? So we'll be discussing later on, right? Okay, so yeah, we have another segment, that is for cash में क्या होगा? At par, at discount, at premium. भैया मैंने क्या कहा था? When I was teaching you issue of shares, I had told you that no shares can be issued at discount. No shares can be issued at discount, but debentures can be issued at discount. Okay, debentures can be issued at discount, right? Okay भाई, तो यहाँ पे at par है, at discount है and at premium है, ठीक है। This is only regarding with issue, right? Only regarding with issue, right? So I'll be scrolling up, right? Yes. So going further, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी है रशियन लिमिटेड इश्यूड डिबेंचर्स फॉर 10,000 एट फेस वैल्यू ऑफ 100, ओके, एट फेस वैल्यू ऑफ 100, राइट। भाई इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं? सेम लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स, ओके, सेम लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। मतलब इसमें एप्लीकेशन होगा, इसमें अलॉटमेंट होगा और इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी होगा, ठीक है। ओके भाई, पहले I'll do one thing is just a second guys, yes. So this is my balance sheet, okay, this is my balance sheet. This is not an actual balance sheet of a company. हम लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से will discuss later on, okay. This is, let's say, equity share, preference shares, right, dash percentage debentures, right, any long term loan, ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट। ओके भैया, मैंने कहा था कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑलवेज फॉलो व्हाट? फेस वैल्यू, ऑलवेज फॉलो व्हाट? फेस वैल्यू, राइट। सर मतलब क्या है भैया? लुक, वी वर डूइंग लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिस वाज एट आईपी, मतलब इश्यू प्राइस। नेक्स्ट जर्नल एंट्री वाज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू equity share capital account, which I'm crediting equity share capital account, that is this account, okay, equity share capital. So this equity share capital always follow face value, equity share capital and preference share capital, right? Okay, like the same way this dash percentage debentures always follow what? Face value, always follow what? Face value, okay. So ये बहुत आप माइंड में रखना ही चाहिए, ठीक है। ओके, राइट। सो यस, as you can see me here, right. So look here, I'll just do one thing, I'll rub this off, okay, so that I can discuss with you people. This is my class notes, okay, right. ओके भैया, ठीक है। नहीं, अभी देखो, हाँ, द विजया कंपनी लिमिटेड इश्यू 10,000, ये क्या है भैया? ये है यूनिट्स, ये है यूनिट्स ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड। 12%, भैया ये 12% क्या है? ये 12% है इंटरेस्ट रेट, ओके, इंटरेस्ट रेट ऑफ, ये ऑफ होना चाहिए, ऑफ 100 ईच। भैया ये 100 क्या है? ये 100 है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, राइट, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ओके। और मैंने कहा था कि आई हैड टोल्ड यू दैट Indian companies knew that Indians don't have lump sum amount to give to somebody. So what they did is पैसे आधे आधे में बेचता गए, ठीक है, मतलब बुलाता गए, राइट। ओके, सो कैसे भैया? देखो, 10 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी एंड 40 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, सारा मिला के क्या कितना होगा भाई? 100,
राइट, 100 रुपये हुए, वेरी गुड, ओके, all the debentures were subscribed and the money duly received. इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब है इसका मतलब, आपको कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, ओके, राइट। सो पहले क्या होगा भाई, देखो, always application money had two journal entries, that is first one is received entry and due entry. Next, allotment had two entries, first one is due entry and received entry, right? Next, first and final call had two entries, that is due entry and received entry, right? Always I had told you received entry में पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक, पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा, करेक्ट, ओके भाई। देखो यहाँ पे ये है मेरा रिसीव्ड एंट्री, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़, भैया ये कौन सा है, ये एप्लीकेशन है ना, तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी, राइट, एप्लीकेशन मनी यहाँ पे है, तो 10,000 रुपीज़, 10,000 यूनिट्स भेजा गया, राइट, 10,000, करेक्ट, 10,000 यूनिट्स इंटू रुपीज़ 10, 10 क्या है, ये एप्लीकेशन, और ये क्या है, 10,000 क्या है, यूनिट्स, राइट, सो 10,000 इंटू 10 इज 1 लाख, तो ये रिसीव्ड एंट्री हुआ और ये ड्यू एंट्री हुआ, करेक्ट, ओके जी। सो मैंने कहा था कि हम मेरे स्टूडेंट्स को आई टोल्ड देम दैट कि ये जो एप्लीकेशन अमाउंट है ना, ये एप्लीकेशन, ये इसका जो अमाउंट रहता है, you have to write the same amount here, same amount always, okay, not only in application, every, okay, every entry, right, okay, we'll see it later, right? So मैं यहाँ पे, अरे एक सेकेंड में कर्सर दिख नहीं रहा, ठीक, हाँ, स्क्रीन ऑफ, राइट भाई, ठीक है, ओके जी, तो हम लोग अभी फिर से शुरू करने वाले हैं, राइट, यस, सो ये है ड्यू एंट्री, राइट, ये है मेरा रिसीव्ड एंट्री। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़, भैया ये 50 रुपीज़ कहाँ पे है, 50 रुपीज़ यहाँ पे है, देखो 50, 50, राइट, ओके, सो आई रिटर्न द रॉन्ग थिंग, सॉरी, ये ड्यू एंट्री है, ड्यू एंट्री, allotment account debit to 12% debentures, to 12% debentures, I have always told you face value follow करता है, ये IP follow करता है, राइट, ओके जी, तो 5 लाख एंड 5 लाख, यही सेम अमाउंट यहाँ पे रहता है, देखो सेम अमाउंट 5 लाख और 5 लाख, ये क्या है, ये जितना मिला है IP, राइट, ओके जी, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी सेम ही रहेगा, ठीक है, सो इतना ही था, ओके, इतना ही था आप लोगों को। नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट प्रीमियम, ओके, आई डिस्कस अबाउट प्रीमियम, राइट, सो एक सेकेंड, राइट, आई हैव ट्रेन्ड ऑल माय दिस थिंग, ठीक है, Tunga Company Limited, okay, Tunga Company Limited issued 12,000 equity, sorry, 12,000 debentures at 12%, okay, of 100 each, ये क्या है भाई, ये है फेस वैल्यू, ये क्या है, ये इंटरेस्ट, ये यूनिट्स है, ठीक, एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच पेबल, मतलब 100 फेस वैल्यू है, 10 सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 110 IP है, ठीक है, ये फेस वैल्यू, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये है IP, ठीक है, ये है IP, ठीक है, मतलब वी वांट मनी ऑफ दिस रुपीज, नॉट दिस, ओके, एट पार होता तो वी हैड टेकन दिस अमाउंट, राइट, एट पार होता तो ये अमाउंट रहेगा था ना, 10 रुपीज़ तो सिक्योरिटीज है, करेक्ट, ओके, 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन,
50 rupees on allotment. I have told you, I have mentioned that when I was teaching you shares, that always securities premium amount will be received with allotment amount. Okay, with allotment amount. So can I not say this 50 rupees has 10 rupees of securities premium, right? This 50 rupees has 10 rupees of securities premium and 40 rupees है of face value, correct, of face value, right? So 40 rupees क्या है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधा आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो देखो यहाँ पे I always do something called as schedule. Okay, this is my schedule. Face value, IP, right? Application, allotment, first and final call. Application में issue में है 20, 50 and 40. I had told you that 50 में 10 rupees है face value, सॉरी 10 रुपीज़ है सिक्योरिटीज प्रीमियम, 40 रुपीज़ है फेस वैल्यू, राइट? सो यही 40 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये फेस वैल्यू का कॉलम है। तो ये 20 रुपीज़ एंड दिस इज़ 40 रुपीज़, 100 रुपीज़ इज़ माई फेस वैल्यू एंड 110 इज़ माई IP, राइट? पता चला? ठीक है भाई, राइट, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो डिबेंचर, दिस इज माय ड्यू एंट्री, ओके। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये क्या फॉलो करता है? ये फॉलो करता है IP, राइट? 6 लाख रुपीज, करेक्ट। नेक्स्ट 12% डिबेंचर अकाउंट, आई हैड टोल्ड यू ऑलवेज फॉलो फेस वैल्यू, राइट? कितना है? 40, तो ये कितना है? 40, करेक्ट। नेक्स्ट दिस इज 10, व्हाट इज दिस 10? ESP, right? Next, bank account debit to debenture allotment account, which is IP, right? 12,000 into 50 rupees. ये कितना है यहाँ पे देखो, अलॉटमेंट में कितना रहेगा ना, उतना ही यहाँ पे रहेगा, ठीक? ओके भैया, समझ में आ गया, राइट? सो अगर ये क्लास होता तो आई वुड हैव सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन दिस, बट एज दिस इज अ रिविजन वीडियो, I won't be solving lots of things, okay, right? सो डिस्काउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ सम ऑफ माई स्टूडेंट्स who were struggling little in this thing, what, डिस्काउंट में, राइट? ओके, लुक हियर सर, डिस्काउंट में ऐसा क्या है, जब भी डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100, ठीक है, डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 एंड कंपनी वांट्स दैट अमाउंट, 100 अमाउंट जो है ना, वो कंपनी को 100 नहीं चाहिए, वो कंपनी को चाहिए 90 में, ठीक है, 90 में, ताकि रिडम्पशन करते समय बहुत प्रॉब्लम ना हो, बहुत लॉस में ना पड़ते हैं, करेक्ट? तो 90 में चाहिए था, जो आप ये 90 के बारे में सोच रहे हो वो 90 नहीं, ठीक है, 90 में चाहिए था। तो यहाँ पे देखो, आई एम इश्यूइंग 100 रुपीज़ वाला वर्थ थिंग इन 90 रुपीज़, कैन आई नॉट से आई एम सफरिंग अ लॉस ऑफ 10 रुपीज़? जो 100 रुपये का माल था, अगर बोले तो ये मेरा मोबाइल 100 रुपये में है एंड आई एम सेलिंग इट इन 90 रुपीज़, कैन आई नॉट से आई एम सफरिंग अ लॉस ऑफ 10 रुपीज़? लाइक वाइज ये भी डिबेंचर में ऐसा ही होगा, ठीक है, देखेंगे, रुको, लुक हियर, ओके। रेड्डी कंपनी लिमिटेड इशू 2000, ये क्या है? ये 2000 है यूनिट्स। भैया आप हर क्वेश्चन में ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स, दे लिटरली गेट कन्फ्यूज कि इतना सारा नंबर्स है, किसको क्या करके समझें, करेक्ट, राइट? दिस इज व्हाट, दिस इज 10% इंटरेस्ट है ऑफ 100 ईच, 100 क्या है भाई? ये है फेस वैल्यू, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 100 माइनस 10%, दैट इज 90, okay, that is 90, this is IP, this is discount, okay, this is face value, right? That this is face value। भैया कंपनी को पैसे कितना चाहिए?
कंपनी को पैसे चाहिए इतना 90, राइट। ओके भाई, चलिए शुरू करते हैं। 20 रुपीज़ है, यहाँ पे देखो 20 रुपीज़ है एप्लीकेशन मनी, ओके 20 रुपीज़ है एप्लीकेशन मनी, 20 रुपीज़ है अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब 90 -20 कितना हुआ 50 रुपीज़ ये हुआ। अभी मैं फिर से शेड्यूल बनाऊंगा, ठीक है। देखो लुक हियर, आई विल डू वन थिंग, मैं ये पूरा ना कैंसिल करके फिर से लिखूंगा ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड, राइट, ठीक है। दिस इज माई फेस वैल्यू, this is my IP, this is my application, this is my allotment, this is my F and F, right। ये है 20, allotment थोड़ा सा रुको, I'll tell you, ये भी है 20, ये है 20 है ना, देखेंगे जी 20 है, राइट। यहाँ पे हमको कितना चाहिए 90, मतलब ये होगा 50, ये भी होगा 50, लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 30। भैया यहाँ पे 30 कैसे आया, देखो बोलता हूँ, ये 100, राइट। लुक हियर, दिस 20, सॉरी इसमें कर दिया, लुक हियर, दिस 20 इज द अमाउंट, ओके। पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि देखो, as we were receiving the securities premium amount in allotment, likewise we will receive the amount of discounted, okay, we will receive the discounted amount in allotment only, okay। So this ये जो 20 है ना, ये 20 है आफ्टर डिस्काउंट वाला, सुनो फिर से बोलता हूँ, ये 20 है आफ्टर डिस्काउंट वाला, जो अलॉटमेंट है ना वो आफ्टर डिस्काउंट वाला है। मतलब मुझे आफ्टर डिस्काउंट, मतलब मुझे बिफोर डिस्काउंट कितना था, लो यहाँ पे दिस 20 इज IP, राइट, दिस एंड डिस्काउंट इज 10 रुपीज, कैन आई नॉट से दिस इज 20 प्लस IP प्लस डिस्काउंट इज 30 विच कम्स टू फेस वैल्यू, राइट। ये जो 30 रुपीज़ यहाँ पे लिखा है ना 30, वो जो फेस वैल्यू है 30 रुपीज़ है, ठीक। भैया थोड़ा समझ में आया, प्लीज़ एक काम कर दो, एक फॉर्मूला दे दो, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू IP, ठीक। फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू IP, फेस वैल्यू कितना था 100, डिस्काउंट 10% था, मतलब 10 इज इक्वल टू IP, राइट। तो इसी फॉर्मूले में यू हैव टू प्ले ऑलवेज, राइट। ओके जी, बढ़िया। एंड आई हैड टोल्ड यू डैश परसेंट डिबेंचर्स ऑलवेज फॉलो व्हाट, फेस वैल्यू, राइट। तो सीधा आते हैं पॉइंट पर, देखो आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग, ओके। लुक हियर, डिबेंचर ये है डिवेंट्री, ओके। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20, भैया ये 20 क्या था, ये हमारा IP है, राइट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये है क्या है, हमारा लॉस है, ठीक, लॉस है 10 रुपये का, करेक्ट। नेक्स्ट 10% डिबेंचर्स, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट दिस विल बी माई FV, दैट इज 30 रुपीज़, राइट, फेस वैल्यू, राइट, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या है भाई, IP, जो पैसे मिलता है, राइट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या जो यहाँ पे जो डेबिट हुआ है ना, यहाँ पे सेम अमाउंट क्रेडिट हुआ है, राइट। आई थिंक यू पीपल हैव गॉट टू नो दैट कैसे करना है, करेक्ट। सो अराउंड 24 minutes 30 seconds हुआ है, ओके। सो I'll continue tomorrow, right। So with this note I'll be ending up the session. Hope you have learned something new, right, out of the syllabus of college, okay। So bye guys.